So welcome back students. As all of you knows that we are right now discussing with our history chapter 5. Okay, the name of the chapter is When People Rebel 1857 and after. Okay, so in this particular chapter, okay, we have already covered the 7 videos. Okay, the 7 different topics that we have covered under the 7 videos. Okay, so in the last video number 7 from this chapter, okay, we have discussed about how the rebellion spread. Okay, so how the rebellion spread in 1857 in different parts of the country. Okay, so in that last video we have discussed about that how the different leaders emerged, okay, like leader Bakat Khan, Babu Kunwar Singh and Maulvi Ahmadullah Shah. Okay, so in different parts of the country, how did the different new leaders emerge in the rebellion? So today we are going to start with a new topic in this same chapter. The name of the topic is The Company Fights Back. Okay, now this topic is according to our textbook. Okay, that is the topic which is given in our textbook. Okay, so the main topic which is given in our textbook is what? The company fights back. Okay, again the topic is little bit bigger one. Okay, so we are dividing it into number of subtopics. Okay, so in the initial pages of that topic which is given in our textbook, okay, so we have divided it into a subtopic: company regain its territory. Okay, so this is what the subtopic. So what actually we are going to discuss in this subtopic is when the rebellion spread in different parts of India, okay, how did the British East India Company respond against this rebellion? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 1857 के रेबेलियन के खिलाफ किस तरीके से कार्यवाही की? हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दिस रेबेलियन? ओके, सो इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोस कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापसी की, ओके, अपनी लड़ाई लड़ी. Okay, so let us start the discussion on this topic. So once the rebellion spread, okay, at the initial stages, the British East India Company defeated in number of battles. Okay, it took some time for British East India Company to balance its strategies, to maintain its strategies. But once the British East India Company developed its strategies, now the British East India Company started fighting against the rebellion forces. Okay, so the company decided to repress the revolt. वो जो revolt था बहुत large scale पर था. Okay, but company decided to repress the revolt with its mind. Okay, British East India Company ने थोड़ा संभलने के बाद ये डिसाइड किया कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे. Okay, so they have decided that we should repress the revolt with all our might. कंपनी ने अपनी पूरी ताकत से इस रेबेलियन को रिप्रेस मतलब कुचलने का, दबा करके रोकने का डिसीजन लिया. For that, what the company did? Okay, the company brought forces from England and passed some new laws. Okay, so the British East India Company brought the forces from England. अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1857 के समय पर जो सोल्जर्स थे, मैक्सिमम सोल्जर्स बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन. ओके, सो the British East India Company army has very less number of soldiers from European origin. Most of the Indian soldiers took part in the rebellion against the British. Okay, so it was basically a number of soldiers
who were very less in favor of British East India Company. So what the British East India Company did, the British East India Company brought forces from England. British East India Company ने इंग्लैंड से और बहुत बड़ी सेना बुलवाई. Okay, the force from England had most of the soldiers from England itself and from the European origin. तो जो इंग्लैंड से आर्मी बुलवाई गई उसमें मैक्सिमम सोल्जर्स कौन थे? दे आर फ्रॉम इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज. ओके, सो दे आर सर्टेनली लॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उन लोगों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये डर नहीं था कि ये लोग भी क्या करेंगे, हमारे अगेंस्ट में रिवॉल्ट करेंगे. यूरोपियंस हैं, सो दे ऑटोमेटिकली would support the British East India Company. Or at the same time, the British East India Company passed new laws. Okay, बहुत सारे नए laws भी पास किए गए. Okay, because of these laws, ये जो नए law पास किए गए, because of it, what happens? It was easier for British East India Company to run the case against those people who have taken पार्टिसिपेशन इन द रिवॉल्ट. ओके, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड से बहुत बड़ी फोर्स बुलवाई. उस फोर्स में मैक्सिमम यूरोपियंस थे. ओके, सो सर्टेनली दे आर नॉट गोइंग टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो वो लोग किसके लिए लड़ेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ेंगे. एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो पास्ड न्यू लॉज. बहुत सारे नए कानून भी बनाए गए. अब ये नए कानून बनाने से क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन लोगों के खिलाफ केस चलाना और उन्हें पनिशमेंट देना इजी हो गया. दोज हु हैव टेकन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द रेबेलियन. सो जिन लोगों ने रेबेलियन में भाग लिया था उनके खिलाफ केस चलाना इजी हुआ. एट द सेम टाइम इट वॉज इजी to give punishment to them. Delhi was recaptured. Okay, अब इन सब का क्या प्रभाव हुआ कि Delhi was recaptured in September 1857. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी ताकत से इस रेबेलियन को रोकने का, कुचलने का डिसीजन लिया. और सबसे पहले कहां पर ध्यान केंद्रित किया? दे concentrated on Delhi. Okay, so Delhi was recaptured in September 1857. September 1857 को ही मात्र 4 या 5 महीनों के अंदर दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने रेबल फोर्सेस के कब्जे से छुड़ा लिया. Okay, so the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar defeated. Bahadur Shah Zafar sentenced for life imprisonment. ओके, हारने के बाद में जो लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर was arrested from the हुमायूं's tomb. जब सेना हारने लगी तो बहादुर शाह जफर ने अपने परिवार के साथ जो दिल्ली के आउटस्कर्ट में हुमायूं का मकबरा था वहां पर शरण ली. ओके, एंड द ब्रिटिश फोर्सेस सराउंडेड द हुमायूं's tomb and they persuade the emperor to surrender. बादशाह ने सरेंडर कर दिया. मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खिलाफ कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में केस चला. एंड इन दैट केस ही वाज गिवन सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ओके, उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई. ओके, आजीवन कैद की सजा सुनाने के बाद में he was sent to Rangoon. Okay, Rangoon was the capital of Burma that time. आज का जो एक कंट्री है जिसको हम म्यांमार बोलते हैं. ओके, इंडिया की बाउंड्री भी लगती है. सो बर्मा की जो राजधानी थी रंगून, देयर बहादुर शाह जफर was sentenced. ओके, बहादुर शाह जफर को वहां पर उम्र कैद, आजीवन उम्र कैद की सजा सुना करके भेज दिया गया. ओके, so he was sent along with his wife Begum Zeenat Mahal. Okay, and in the year
1862 in November 1862 बहादुर शाह जफर died in the jail. वहां पर फिर वो ताउम्र वहीं पर रहे और नवंबर 1867 बहादुर शाह जफर died. Okay, struggle continued in other part of India. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली तो अपने कंट्रोल में ले लिया था, बट जो स्ट्रगल था इट कंटिन्यूड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो विद्रोह था, स्ट्रगल था, वो इंडिया के बाकी के हिस्सों में लगातार चलता रहा. ओके, सो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 1857, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, okay, like in case of Kanpur, Lucknow, okay, Jagdishpur in Bihar, okay, Ara, Jhansi, Gwalior. So in different parts of India, the leaders in the revolt continue their struggle. उन्होंने अपना struggle जारी रखा, and it took almost 2 years to suppress the rebellion. और इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 2 साल लग गए इस पूरे रेबेलियन को सप्रेस करने में. ओके, सो 1857 लगभग 3-4 महीने में ही दिल्ली कब्जे में आ गई थी, परंतु बाकी का जो हिस्सा था हिंदुस्तान का, वहां पर अलग अलग हिस्सों में स्टिल द रेबेलियन कंटिन्यू. सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years for British East India Company to suppress the rebellion. Okay, so Lucknow was taken in March 1858. Okay, लगभग सितंबर अप टू मार्च, okay, 8 या 9 महीने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर वापस अपना कंट्रोल कर लिया ऑन द सिटी ऑफ लखनऊ. देन दे मूव टुवर्ड्स झांसी. Okay, so the Jhansi was taken in June 1858. June 1858 में they regain control on Jhansi. Still, one of the companion of Lakshmi Bai, okay, Tatya Tope, continued his struggle. Tatya Tope जो सेंट्रल इंडिया का फॉरेस्ट था, सेंट्रल इंडिया मीन्स द फॉरेस्ट इन एंड अराउंड नागपुर, होशंगाबाद, बैतूल. ओके, यहाँ का जो सेंट्रल इंडिया सतपुड़ा के आसपास का फॉरेस्ट था, तात्या टोपे आफ्टर द फॉल ऑफ झांसी, झांसी गवाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई तो उनकी तो मृत्यु हो गई, तात्या टोपे जो थे वो झांसी छोड़ करके भाग खड़े हुए एंड ही केम इनटू द सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट. ओके, but finally he was also arrested and killed in 1859. So 1857 से लेकर 1859 लगभग 2 साल ब्रिटिशर्स को लग गए इस पूरे रेबेलियन को सप्रेस करने में. Got it? So in this same video we'll discuss one more subtopic related to the same topic. The company fights back. Okay. So we have already discussed that how the Britishers suppress the rebellion. Okay, but it is not only the force by which the British suppress the rebellion. Okay, they have adopted many other policies, okay, which are also very useful for the British East India Company to again get the control on different territories of India. Okay, so this is what the topic, policies adopted by British to suppress rebellion. Okay, so we have already discussed the different ways by which the British try to or British suppress the rebellion. Now we will discuss on the different policies adopted by the British East India Company to suppress the rebellion. So they, that is the British East India Company, work on 2 ways. Okay, one of the way was to use the force. अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भी ब्रिटिशर्स ने उस रेबेलियन को रोकने का, कुचलने का पूरा प्रयास किया, बट ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो अडॉप्टेड डिफरेंट पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और तौर तरीके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाए जिसने ताकत के साथ साथ इन तरीकों के जरिए भी ब्रिटिशर्स को उस रेबेलियन को सप्रेस करने में बहुत मदद करी। ओके, इट वाज बेसिकली अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द फोर्स एज वेल एज डिफरेंट पॉलिसीज adopted by the British East India Company, which helped the company to regain the control over India. Okay, so what the British did, the defeat of rebel forces persuade the people to leave the struggle. Okay, starting में क्या हुआ था, when the rebel forces, जो विद्रोही forces थे, when they won बैटल वन आफ्टर अनदर, जब विद्रोहियों को एक एक करके लड़ाई में जीत मिली तो इट एनकरेज द अदर पीपल टू टेक पार्ट इन द रेबेलियन। अब उसी का ठीक उल्टा कब होना शुरू हुआ, व्हेन द फोर्सेज और रेबल फोर्सेज गॉट डिफीटेड। ओके, सो द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज परसुएड द पीपल टू लीव द स्ट्रगल। शुरुआत में स्ट्रगल की शुरुआत में क्या हुआ था, जब रेबेल फोर्सेस को, विद्रोहियों को एक के बाद एक जीत मिलना शुरू हुई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो इसने इंडियंस को एनकरेज किया कि अब हम और क्या करना चाहिए, हमें भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी का उल्टा तब होना शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स ने संभल करके एक एक करके रेबेल फोर्सेस को हराना शुरू कर दिया। तो जैसे ही दिल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में आया, देन आफ्टर लखनऊ कंट्रोल में आया, तो जैसे जैसे रेबल फोर्सेस हारते गए, बाकी के लोग हैं वो भी क्या होना शुरू हुए, इस स्ट्रगल से दूर होना शुरू हुए। तो जैसे शुरुआत में जब विद्रोही सिपाहियों को सफलता मिली थी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस रेबेलियन को ज्वाइन किया, इसी का ठीक उल्टा क्या हुआ, जैसे जैसे रेबल फोर्सेस हारती चली गई, लोग रेबेलियन से दूर हट करके चुपचाप अपने घरों में बैठते चले गए। ओके, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज एडॉप्ट करी, उसी समय पर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लोगों की लॉयल्टी मिले। ओके, सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नंबर ऑफ अनाउंसमेंट, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करी ताकि जो लोग अभी भी शायद मन बना रहे थे कि विल गो इन सपोर्ट ऑफ द रेबल फोर्सेस, तो उन लोगों को रोकने के लिए इस प्रकार की अनाउंसमेंट किए गए विच स्टॉप द पीपल to again join the rebellion. Okay, so they announced reward for loyal landholders. Okay, so the British East India Company announced reward for loyal landholders. Okay, वो landholders, वो बड़े बड़े जमींदार या फिर जागीरदार या राजा महाराजा जो 1857 के रिवॉल्ट के समय भी किसके साथ थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। सो दोज हु स्टिल गिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे डिड नॉट ज्वाइन द रेबेल फोर्सेस। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनाउंस्ड नंबर ऑफ रिवॉर्ड, उनके लिए बहुत सारे इनाम और इस टाइप की योजनाओं का अनाउंसमेंट किया by the British East India Company. Okay, so they were allowed, that is those loyal landholders were allowed to enjoy their rights on land. ठीक है, जो लॉयल लैंड होल्डर्स थे उनके लिए अनाउंसमेंट किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब आगे से उनकी जमीन जायदादों को किसी भी पॉलिसी के अंडर में अपने कब्जे में नहीं लेगी। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये घोषणा करी, अनाउंसमेंट किया कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, अब आगे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी लैंड होल्डर की, जमींदार की, जागीरदार की जमीन जायदाद अपने कब्जे में नहीं करेगी। ओके, दोज हु हैव नॉट किल्ड एनी ब्रिटिश वेर ऑल्सो रिमेन सेफ
and would enjoy rights on land. ओके, इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और क्या अनाउंसमेंट किया? वे लोग जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट तो किया था, बट दे हैव नॉट किल्ड एनी ब्रिटिश, परंतु उन्होंने किसी ब्रिटिश की हत्या नहीं की थी. ओके, सो दोस पीपल हैव जॉइन्ड द रेबेलियन, उन्होंने रेबेलियन ज्वाइन तो किया था, परंतु यदि उन लोगों के हाथों किसी ब्रिटिश नागरिक की हत्या नहीं हुई है, उनको भी ब्रिटिश ने क्या कर दिया? माफ कर दिया कि दे वुड रिमेन सेफ एंड दे वुड ऑल्सो अलाउड टू एंजॉय राइट्स ऑन लैंड. तो जिन लोगों ने रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया परंतु उनके हाथों किसी ब्रिटिश की हत्या नहीं हुई, उन सभी लोगों को भी आम माफी दे दी गई. ओके, एंड दे वर ऑल्सो अलाउड टू एंजॉय राइट्स ओवर देयर लैंड. Other culprits were severely punished. अब इतने सारे लोगों को छोड़ने के बाद जो कल्प्रिट्स थे, जो लोग दोषी पाए गए, that is they have taken participation in the revolt and they were certainly involved in the killing of British. जिन लोगों ने रेबेलियन में पार्टिसिपेट भी किया था और इस बात के पक्के सबूत थे कि दे were involved in the killing of British, ये लोग ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज के ब्रिटिश एम्प्लॉइज थे, उनकी हत्या में भी ये लोग शामिल थे. उन सभी लोगों को बहुत सीवियरली, वेदर दे वर द कॉमन सिटीजन्स, जमींदार्स, ओके, और द सोल्जर्स, एवरीवन, ओके, इवन द नवाब्स एंड राजास, ऑल वेर सीवियरली पनिश्ड. बाकी जो कल्प्रिट्स थे, बाकी के जिन लोगों को दोषी पाया गया, उन सभी लोगों को बहुत ही कठोर दंड दिया गया. ओके, तो दिस इज हाउ द रेबेलियन ऑफ 1857 ओवर. इस प्रकार जो 1857 का जो रेबेलियन था, which was started from the mutiny and then later on converted into a very vast struggle against the British East India Company. So it was finally ended, okay, by the force used by the British East India Company as well as the other policies adopted by the British East India Company. So British East India Company ने finally 1857 के रिवॉल्ट को 1859 तक आते आते लगभग 2 सालों में पूरी तरीके से खत्म कर दिया, कुचल दिया. ओके, इस रिवॉल्ट को कुचलने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताकत थी, आर्मी की जो ताकत थी, उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना कंट्रीब्यूशन उन डिफरेंट पॉलिसीज का था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए यूज की. तो ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ उन पॉलिसीज ने भी इस रिवॉल्ट को क्रश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ओके, तो दिस इज हाउ दिस सेक्शन इज ओवर. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we'll continue with this chapter and we'll discuss after the 1857 revolt what new policies were adopted by the British East India Company. Okay, thank you.